So students, today we are going to start new unit, that is carbon and its compounds. So in this chapter we will discuss about carbon and different compounds. So all the substance that surrounded us has carbon with components within them. Like if we say that what about us? Even though human beings are eating glucose and other things, these all are made up of, in the human beings are made up of carbons. Our living and non-living components in the environment are carbon based. सो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, वो सारे कार्बन बेस्ड हैं. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 18% ऑफ कार्बन एंड एक्ट एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. 18% कार्बन जो है वो ह्यूमन बॉडी में 18% कार्बन प्रेजेंट होता है भाई, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है सेल का, which is present in the human body. It is necessary for cellular respiration of various parts of human body. Cellular respiration मतलब जो हम respire करते हैं, we are taking oxygen, we are giving out carbon dioxide. These only this process is done by cell. Then cellular respiration and other parts of the body, this is the most important thing, that is carbon. So carbon is basically an element and is of extensive importance and significance both in its elemental form and its combined form for the survival on earth. If the carbon is not there, then the survival on earth is not possible. So carbon is basically a element which is a very important thing for its elemental form or combined form for survival. 0.02% carbon is present in earth crust in the form of carbonates, hydrogen carbonates, coal, petroleum, other minerals. All the coals, petroleum, diesel, whatever we used have carbon inside it. 0.02% of carbon is present in the form of carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleums. Whereas 0.03% carbon is present in the एटमोसफियर. 0.03% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है अभी एटमोसफियर में. नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड इन ए कार्बन. This is an important thing. We know that covalent bond is formed by mutual sharing of electron. If I say for example we have H and H, this bond is formed by mutual sharing of two electrons. That is H and H. The element having less than 8 electron in their outermost shell always have a tendency to attain octet. Octet का मतलब होता है अभी 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost cell. Okay, so element which have less than 8 electrons in their outermost cell always have a tendency to attain octet in order to attain a noble gas configuration by gaining or losing electrons forming ionic compounds. जिन एलिमेंट्स में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्टेट को अटेन करें बाय ऑक्टेट को कंप्लीट करें बाय अटेनिंग अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें. इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या फिर गेन करके वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं. In case of carbon with atomic number 6, there are 4 electrons in outermost cell, due to which it is known as tetravalent. Tetravalency, tetra मतलब 4. 6 भाई उसका एटॉमिक नंबर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1s2 2s2 4 हो गए और 2p2 मीन्स आउटर मोस्ट सेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो इसीलिए ये टेट्रावेलेंट होता है. Okay, so in case of carbon, the bonding or covalent bonding is represented at this. Carbon has 2s2 there and 2p4. Okay, next is covalent bond in carbon. In it gains or loses whole electron to attain the nearest noble configuration. Carbon can have two possibility. Either it can gain electron or it can gives electron. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स देता है तब वो आपके पास C4 पॉजिटिव बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो C4 नेगेटिव बनाएगा. कार्बन हैज टू पॉसिबिलिटीज टू अटेन द नोबल कॉन्फ़िगरेशन. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज टू अटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ C4 एंड नेगेटिव आयन. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो वो C4 नेगेटिव आयन बनाएगा, बट इट वुड डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स फैमिली. ये डिफिकल्ट रहता है इलेक्ट्रॉन्स को कि
nucleus को, that he cannot डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर फर्मली, इलेक्ट्रॉन्स को वो इजिली होल्ड नहीं कर पाता। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है कैटायन बनाने के लिए। दिस विल आल्सो बी डिफिकल्ट बिकॉज वी नीड लार्जर एनर्जी, बिकॉज वी नीड लार्जर एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी पर्टिकुलर मेटल एटम से, तो आपको बाहर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी अगर चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा चाहिएगी। ओके, एज ए रिजल्ट एटम कैन विल कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। Therefore, carbon shares its valence electron in its outermost shell with the electron in the outermost shell of combining atom of other elements. Means क्या है? अब हमने पढ़ा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। गेन करेगा तब भी वो स्टेबल फॉर्म नहीं बनेगा और लॉस करेगा तब भी स्टेबल फॉर्म नहीं बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड इसलिए होता है भाई क्योंकि कार्बन शेयर कर सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन इट्स वैलेंस सेल with the electrons in its outermost shell of the combining atoms। जो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है उस एटम के साथ वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। इसीलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर वो शेयरिंग करता है, दो एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन with the electrons of other combining atom, the carbon is said to form covalent bond. Due to the sharing of electrons of carbon and other atom electrons, the carbon is said to form covalent compounds. Carbon shares these electrons with 4 atoms of hydrogen. You can say that in case of CH4, मीथेन के केस में देखो भी, मीथेन के केस में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देता है और आपके पास CH4 बहुत इजीली बन जाता है। अंडरस्टूड? सो यू कैन सी हेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन 1। In the same way, here carbon can electron share. In the same way, carbon can share electron. In the same way, carbon can share electron. There may be the formation of CH4, which is methane gas. Okay. So next is covalent bond in a carbon. Again, the thing is the carbon-carbon bond is very strong, hence stable. कार्बन का और कार्बन के साथ ही ये जो प्रॉपर्टी है ना भाई, एक मेटल एटम एक खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक एटम खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको आप कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हो। और ये जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कंपाउंड पोजेसेस कोवेलेंट बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्मॉल लीडिंग टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स तो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। बट एक मॉलिक्यूल बन गया जैसे CH4 है और दूसरा मॉलिक्यूल है CH4 का, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, इसीलिए लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन और लॉस होते ही नहीं, सिर्फ शेयरिंग ही होती है, तो कोई आयंस बनते ही नहीं है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन। नाउ द बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन कैसे होती है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, ठीक है। KLMN सेल बोलते हैं हम इन्हें। सेल क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लाई करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिन सेल्स में घूमता है उसे आप क्या बोलते हो? जो पाथ जो घूमता है उसे सेल बोलते हो या फिर ऑर्बिट बोलते हो। दिस सेल नीड टू आइदर एक्वायर और लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। या तो उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए टू गेट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। ड्यू टू दिस टू रीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं भाई हमेशा।
एक एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, मैंने पहले भी बताया है, ये ऐसे जो आपके पास H2 मॉलिक्यूल बन जाता है. ओके. So next, you can see in this picture that hydrogen with another hydrogen can share one electron. The shared pair of electron between the hydrogen atom constitutes a single bond between them is represented by a line between the two atoms. अब जो bonding है वो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनेगा भी. दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयरिंग से उसमें हमेशा एक बॉन्ड बनता है. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 3 बॉन्ड बनते हैं. तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स constitutes a single bond and also represented by a line between the two atoms, जैसा कि इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है. बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है भाई, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल सेल. द सेल नीड्स टू आइदर एक्वायर और लूज इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन. अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी को नहीं पता है तो होता क्या है, अगर आउटर मोस्ट सेल में किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो. या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हाइड्रोजन के केस में, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भी, और सारे एटम्स के केस में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिसे ऑक्टेट बोलते हैं. अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब पूरा का पूरा सेल फिल हो जाए, तो उसे आप बोलते हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू अटेन नोबल गैस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अब एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन. So the shared pair of electron between the oxygen atom constituent एक 4 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे भाई, डबल बॉन्ड. एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस बिटवीन द 2 एटम एज शोन इन फिगर एंड एग्जिस्ट एज O2 मॉलिक्यूल्स. जैसा कि आपने इसमें देखा कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक ऑक्सीजन एटम की तरफ यहाँ पे 4 यहाँ पे थे, 2 6 थे भी, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 8 हो गए. इसके पास भी 6 थे, 2 इसने दे दिया, 8 हो गए. स्टेबल स्पीसीज बन गया जिसको आप बोलते हो O2 मॉलिक्यूल, जिसमें डबल बॉन्डिंग होती है. ओके. नेक्स्ट इज बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं. अब इस सेल को एक्वायर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है तो 3 चाहिए. तो हर एक नाइट्रोजन एटम एक दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. तो 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन एटम के, 3 दूसरे एटम के, कितने हो गए, 6. तो 6 से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हैं, एक पेयर से क्या बनता है, एक बॉन्ड, 2 पेयर से 2 बॉन्ड, 3 पेयर से 3 बॉन्ड. एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से 2, और 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे. So shared pair of electron between nitrogen atom constitutes a triple bond and is also represented by 3 parallel lines between the 2 atoms as shown in figure, and it exists as N2 molecule. So you can see here that nitrogen have 5 outermost cell electron, and due to these 5 outermost cell electron, 3 electrons can be shared between 2 nitrogen atom. सो इसके पास 3 और 3 6 और 2 8 हो गए, इसके पास भी 3 3 6 और 2 8 हो गए. आफ्टर शेयरिंग 8 हो गए भी, शेयरिंग से 8 हो गए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव. नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दिस इज इंपॉर्टेंट. द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मीन्स that carbon has a different nature from other particular elements due to presence of covalent bond, and that are stronger covalent bond enables it to form larger number of compounds. कार्बन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, मैंने अभी बताया था, कार्बन की खुद के साथ बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं. possesses a unique ability to form bond with other atoms of carbon. कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ, मतलब कार्बन अपने साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं.
gives a large number of molecules and compounds having long chain of carbon, branched chain of carbon, and carbon atoms arranged in ring linked by single bond, double bond, and triple bond. You can see here that in case of ethane molecule, ethene molecule, and ethyne molecule, single bond, double bond, and triple bond. That's why carbon is a very versatile compound. This can show the property of catenation, which is the property in which carbon can bind to another carbon atom. Okay, and it can form some single bond, double bond, and triple bond. So carbon is a very versatile compound. Next is carbon being tetravalent is capable of bonding with four other elements of carbon and any other combining monovalent elements. अब कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है अभी, वो फोर अदर कार्बन एटम से बाइंड कर सकता है. कार्बन कैन इटसेल्फ बाइंड विद फोर कार्बन एटम और किसी भी मोनोवेलेंट एटम से. मोनोवेलेंट क्या होता है भाई? जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, सिंगल बॉन्ड जिसकी वैलेंसी एक हो, मोनोवेलेंट. जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विद हाइड्रोजन, मीथेन, विद नाइट्रोजन, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, विद सल्फर एंड क्लोरीन, क्लोरोमीथेन, एंड मैनी अदर एलिमेंट्स. बहुत सारे और कंपाउंड बनाता है विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स. कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है पर्टिकुलर कंपाउंड में, इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी. ओके, नेक्स्ट इज you can see here the compounds carbon dioxide, methane, HCN, NCS3Cl. ये होता है क्लोरोमीथेन. The compound forms are stable. These forms are stable due to their strong bond. अब मैंने बहुत बार बताया that carbon can form a very strong bond within itself as a result of its small size, which enables the nucleus to hold the shared pair of electron family. ये किसकी वजह से होता है भाई? क्योंकि स्मॉल साइज होता है और वो इनेबल करता है किसको? न्यूक्लियस को टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मली. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैचुरेटेड कार्बन एटम्स और कंपाउंड्स. कंपाउंड्स फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम. अब सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना भाई, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड. कंपाउंड फॉर्म बाय लिंकेज ऑफ कार्बन बाय अ सिंगल बॉन्ड. कोई किसी भी पर्टिकुलर एटम के साथ, किसी भी पर्टिकुलर एटम के साथ आपका जो बॉन्डिंग है कार्बन की, या फिर कार्बन की कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो सिंगल है, तो उसे आप बोलोगे सैचुरेटेड कंपाउंड. दीज कंपाउंड्स हैव हाइड्रोजन एटम दैट फिल all the other bonding orbitals of carbon atom. इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम होते हैं जो अदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं. जैसे CH4 लगा लो, CH2 डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH3 लगा लो. एल्केन्स भाई मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो कंपाउंड हैं ये क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है. इट इज नोन एज द सीरीज ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड. जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड के पीछे ANE आ जाए तो वो सैचुरेटेड रहेगा. इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है. मीथेन जो है CH4 होता है भाई, सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन का, वो क्या है? वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड. द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड दैट ऑफ कार्बन इज 4. यू कैन सी हियर, मैंने पहले भी बताया है that carbon and hydrogen can share one electron. Carbon can share 4 electron with 4 other hydrogen atoms for individual hydrogen atom to form a single bond. Okay, so these are known as saturated carbon compounds. These saturated compounds are extensively used as fuel and one of the significant constituents of biogas and compressed natural gas. जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ना भाई, जैसे अगर मैं CNG की बात करता हूँ तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है उसमें, वो सैचुरेटेड कंपाउंड हर एक फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं और हर एक फ्यूल में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो बायोगैस हो या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो. द सेकेंड कंपाउंड इन द सीरीज ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इज मिथ के बाद आता है इथ, इथ के बाद प्रोप के बाद ब्यूट. इथेन में भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, प्रोपेन में 3 होते हैं और ब्यूटेन में 4 होते हैं. In case of ethane, 3 valencies of each carbon atoms remains unsatisfied
Hence each carbon atom bonded to 3 हाइड्रोजन एटम. इसमें कैसे होता है, कार्बन इससे बॉन्ड बना लिया, ये H H H H H H, ये बन गया भाई C2H6. Hence each carbon atom is bonded to 3 hydrogen atom by a single bond, are not normally reactive, और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते. Okay, next we will discuss in our next lecture